Hello, people! Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. So, guys, I hope you all are doing amazing. Swasth hoge, mast hoge, chake hoge. So, today I have brought all NCERT exercise questions of metals and non-metals. So, भाइयों और बहनों, don't underestimate the power of these NCERT questions क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी NCERT को बहुत पसंद करता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर्स पास्ट क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे यू विल फाइंड कि एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के चिपका के आपके बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं. So do not underestimate that and practice them a lot. So for that reason, I have brought all NCERT exercise questions of this chapter so that you do not miss even a single question. और इसके साथ साथ आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड टू बी एडेड इन योर आंसर्स. So let's get ourselves started. Come on, chak de pate. Okay, so let's start with a very beautiful and a positive message. A winner is a dreamer who never gives up. So भाई और बहनों, कभी भी ये मत सोच के बैठ जाओ कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा. Do not give up. बस लगे रहो. If you have thought of an aim, तो उसके पीछे भागो और सक्सेस झक मार के तुम्हारे पास आएगी. You'll be a winner one day, definitely. So let's start with the very first question on screen. Come on, guys, let's solve some chemical locha together. Which of the following pairs will give displacement reaction? तो हम अच्छे से जानते हैं कि displacement reaction किसके basis पे work करती है? It based upon reactivity series, right? So जो more reactive होगा वो less reactive को kick out कर सकता है, धक्का देके बाहर निकाल सकता है. So let's have a look here. अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर की, तो क्या कॉपर NaCl में से Na को किक आउट कर सकता है? ना भाई ना. कॉपर में इतना दम नहीं है कि वो सोडियम को धक्का मार सके. So this will not going to happen. Looking on the B part, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को निकाल सकता है उसकी पोजीशन से? Not at all, क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है. Now same goes with silver also. Silver अगर FeSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर का रिएक्टिविटी आयरन से बहुत बहुत कम है and that's the reason it cannot kick out iron from its position. तो बचा कौन? बचा हमारे कॉपर रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट. तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का जो पोजीशन होता है वो कॉपर से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में. So definitely copper can kick out silver and form copper nitrate और सिल्वर बेचारा बाहर बैठेगा अकेला. This is how this displacement reaction का question works in option B. Absolutely fata-fati answer. So do let me know if you get the correct answer. Next question on screen. Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना और थोड़ा रीजनेबल आंसर होना चाहिए. डोंट यू थिंक सो? अगर हमें आयरन के पैन को रस्टिंग से बचाना है तो इनमें से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेदर वी जस्ट अप्लाई ग्रीस ऑन दैट और अप्लाई पेंट, applying a coating of zinc, kind of a galvanization process, or all of the above? क्या बोली public? What would be the correct answer? तो आंसर हियर इज, देखो बड़ा ऑब्वियस है, तुम पेंट करा हुआ बर्तन के ऊपर खाना तो खाओगे नहीं, राइट? दैट पेंटिंग इज एब्सोल्युटली टेम्पररी. उसके साथ साथ ग्रीस वाला भी कब तक बचाएगा? इट्स अगेन अ टेम्पररी प्रोसेस. तो बचा कौन? अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक. अगर आप लोग कभी बेकिंग करते हो, आजकल आप लोग ने देखा हो कि केक के जो कंटेनर्स आते हैं जिसमें हम लोग बेक करते हैं, दे कम ब्लैक इन कलर और उसमें लॉक भी लगा होता है, इफ यू हैव सीन. So those are all galvanized. वो galvanized होते हैं. There are many other containers which are galvanized. So yes, answer is absolutely galvanized one. Okay, on that positive note, moving on to our next question. A metal reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water and the element is likely to be. So क्या बोली पब्लिक? क्या हो सकता है? एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है.
तो ऑब्वियसली दैट विल गोइंग टू क्रिएट और प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, और वो ये कह रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा है, क्या गिव्स अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड, ये जो भी आपका मेटल ऑक्साइड निकल के आया है, दैट इज soluble in water. Soluble in water, maybe slightly soluble, sparingly soluble हो सकता है. In water, the element is likely to be calcium. अभी पहली चीज तो देखो, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ो, उसने आपको मेटल बोला. मेटल बोलते ही आपके दो ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे. कौन कौन से? सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, राइट, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल. बचा कौन? कैल्शियम एंड आयरन. आयरन क्या पानी में डिसॉल्व होता है, या आयरन ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. सो दैट्स द रीजन आयरन इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. सो बचा कौन? कैल्शियम. And that's your absolutely perfect answer. So I hope you understood this question. Moving on to our next question, you are given a hammer, a battery, a bulb, wires, and a switch. Okay, all right. How could you use them to distinguish between the samples of metals and non-metals? And option B कहता है, assess करो the usefulness of these tests and distinguish between metals and non-metals. वन बाय वन लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी पार्ट हमारा मिस ना हो. सो लेट्स स्टार्ट विद A1. आप इन चीजों को यूज करके कैसे बतलाओगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल. देखो, आप लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज यू ऑल आर अवेयर अबाउट. metals conduct electricity, non-metals does not, right? Metals are malleable, non-metals are not, except exceptions. Exceptions को अभी छोड़ दो साइड में, हम जनरल बेसिस की बात करें मोस्टली, राइट. सो नाउ एज वी कैन यूज हैमर, हैमर से हम लोग मेटल्स को मेलिएबल शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी डन विद नॉन मेटल्स. नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, जैसे कि कोयला, कार्बन. तो तुम अगर जमीन पे भी उसको तेजी से मारोगे तो वो टूट जाएगा, राइट. सो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड, व्हेयरएज मेटल्स कैन बी. सो हमने हैमर का यूज कर लिया है. बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच. बल्ब लगाओ, बैटरी से उसको कनेक्ट करो, वायर्स आपको यूज आ ही रहे हैं, और स्विच भी होगा बैटरी को ऑन करने के लिए. सो इफ बल्ब ग्लोस तो मेटल, बल्ब डज नॉट ग्लो तो नॉन मेटल, राइट, बिकॉज नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेयरएज मेटल्स डू. और आधे से ज्यादा नॉन मेटल्स आपके गैसियस स्टेट में होते हैं, तो वैसे ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट. Now, what do you assess from these tests? आपने ये जो भी ऊपर टेस्ट करा, इससे आपने क्या assess करा? So we assessed the properties between metals and non-metals. इससे हमने ये assess कर दिया कि boss metals malleable है, metals conductor of electricity होते हैं, और non-metals के पास तो कुछ, they are having everything as non. No electrical conductivity or poor conductors of electricity as well as non-malleable. तो सीधा सीधा आंसर लिखना है, एंड ऑलवेज आंसर इन पॉइंटर्स. हमेशा पॉइंटर्स में अपने आंसर देना, पैराग्राफ लिखकर मत आना. कोई कहानी नहीं पढ़ता है आप लोगों की बैठ के. सो पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी इन सच अ वे कि आप लोग पॉइंट्स में अपने आंसर्स लिखेंगे, राइट. So these experiments can be helpful to demonstrate the malleability and electrical conductivity between and non-metal. All right, guys. Now, on that positive note, moving on to our next question. What are amphoteric oxide? This is very, very important. Amphoteric क्या होता है? पहली बात, amphoteric बोले तो which has the ability to react with metals also as well as non-metals. Which has the ability to react with acids also as well as bases also, right? इन्हें हम कहते हैं amphoteric. Amphoteric दो metals आप लोग ने पढ़े हैं, that is zinc and aluminium. अगर मेटल एम्फोटेरिक है तो उसके चाचा मामा सब एम्फोटेरिक बिहेवियर रखते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक बिहेवियर रखेंगे. बोले तो जिंक ऑक्साइड एज वेल एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही ऐसे बिहेवियर रखते हैं वेयर दे कैन इजीली रिएक्ट टुवर्ड्स एसिड्स आल्सो एंड बेसिस आल्सो, तो उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दो एग्जांपल्स आपको पता है. अब एग्जांपल के तौर पे आप रिएक्शन लिख कर आओगे, रिएक्शन चिपका के जरूर आना, वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है. सो मेटल ऑक्साइड्स विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं. So here are the reactions. Aluminium oxide HCl के साथ रिएक्ट करके मक्खन AlCl3 देगा और साथ में पानी देगा. ठीक है. Now one more thing I need to point it out जो आप लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो, and that's a byproduct. एक टाइम हुआ करता था कि जब आप बाय प्रोडक्ट नहीं भी लिखते थे तो चलता था, लेकिन अब आपको बाय प्रोडक्ट लिखना है, साथ में यू हैव टू राइट द करेक्ट बाय प्रोडक्ट, क्योंकि बाय प्रोडक्ट गलत हुआ, बैलेंसिंग पूरा गलत होगा, एंड रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज शून्य, जीरो, रॉन्ग माना जाएगा. तो अभी प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देने का है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं ना बच्चे, जब एल्यूमिनियम को हम लोग एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, या सेम थिंग हैपेंस विद जिंक आल्सो, तो क्या होता है AlCl3. नाउ हियर इट विल बी जस्ट हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट. जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब मेटल ऑक्साइड को आप एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो बाय प्रोडक्ट में पानी निकलता है. एंड व्हाट यू गाइस डू, आप लोग यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिखाते हो, so that creates a lot of problem, और वहीं जाके आप अपने मार्क्स कटवा के आते हो और बाद में सोचते हो कि यार हमने सही तो लिखा था. अपने प्रोडक्ट बिल्कुल सही लिखा होगा, आई डोंट डाउट दैट, बट बाय प्रोडक्ट में आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो. सो हियर स्पेसिफिकली यहाँ पे पानी निकलेगा, नॉट हाइड्रोजन. Mind it. Okay? So metal oxide एसिड के साथ भी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करके देता है सोडियम एल्यूमिनेट. अब ये सोडियम एल्यूमिनेट कैसे बना, आप कैसे याद रखोगे? सो फॉर्मूला बनाना देख लो. सोडियम +1, एल्यूमिनेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन Al2 1 माइनस. ठीक है. हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन्स को ब्रैकेट में बंद करते हैं, एंड आफ्टर क्रिस क्रॉस यू गेट NaAl2. दैट्स सोडियम एल्यूमिनेट. यहाँ पे भी आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप गड़बड़ करते हो हर साल घुमा फिरा के वो आपको एक क्वेश्चन दे देता है, बिकॉज दे नो यू विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक. चाहे उन लोगों को इतनी खुशी प्रदान करते हो एकदम थाली पे सजा के, जब पता है कि इम्पोर्टेंट है तो याद करो. नाउ सेम थिंग हैपेंस विद जिंक. जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है? सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कैसे बनता है? Na के ऊपर +1 एंड जिंकेट इज ZnO2 2 माइनस. ये आयन का फॉर्मूला है, एंड वंस यू क्रिस क्रॉस दैट गिव्स यू ZnO2 प्लस पानी पानी रे, यू नो दैट. Okay, next question. Name two metals which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not. अब ये तुम्हार मर्जी है. It's your choice. आपको वो metals देने हैं which are above hydrogen in reactivity series for this part. Which metal will displace? Any metal which are above hydrogen in reactivity series, चाहे sodium हो, calcium हो, magnesium हो, aluminium, iron हो, all of those metals will going to displace and have the ability, power to displace hydrogen from its position. लेकिन those metals which are below hydrogen, जैसे कि copper हो गया, silver हो गया, platinum हो गया, right, gold हो गया, all of these metals जो कि hydrogen से नीचे आते हैं, they are the ones which do not have the ability to displace. तो यहाँ पे I have quoted zinc and magnesium. बाकी आपकी मर्जी है, आपको कोई और मेटल देना है, but it has to be above hydrogen. That is also absolutely correct. और यहाँ पे I have quoted gold and silver. You have a choice. Copper लिख लो, platinum लिख लो. Okay, so this was completely again based upon reactivity series. तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे, बिकॉज हर बार हर साल क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस पार्ट. और रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग, आई जस्ट गिव यू वन टिप हियर.
जब भी आप अपना पेपर स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो लास्ट में जाके एक बार रिएक्टिविटी लिख दो, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में वो आपके काम आती ही आती है. सो इन बिटवीन यू डोंट हैव टू ब्रेक योर फ्लो एंड राइट द रिएक्टिविटी सीरीज. आपके पास लिखी हुई है, तैयार है, और उसमें से बस आपको उठा के अपना आंसर चिपका. That's it. Done and dusted. Okay, next question. In the electrolytic refining of metal M, what would you take as anode, cathode and electrolyte? What do you think? Electrolytic refining में इन तीन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, राइट? सो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है. इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली द वंस व्हिच हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक. और उसके साथ हमारे पास होते हैं एनोड्स एंड कैथोड्स. एनोड कौन होगा? जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा होता है, एंड कैथोड वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा होता है, ठीक. नाउ दे आर आस्किंग यू, अगर एक मेटल एम है तो इस मेटल एम से रिलेटेड आप कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड लोगे और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? बहुत सिंपल है. हमें ये पता है कि एनोड पे हमेशा इम्प्योर मेटल का ब्लॉक आएगा. तो यहाँ पे मेटल एम का इम्प्योर ब्लॉक, खत्म, इतना ही. और हम ये भी जानते हैं कि कैथोड पे हम हमेशा प्योर स्ट्रिप लेते हैं मेटल की. सो फॉर कैथोड वी विल चूज अ प्योर मेटल एम स्ट्रिप. एंड व्हाट वुड बी योर इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट उस सेम मेटल का सोल्यूशन होता है जिससे हमें प्योरीफाई करना है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट विल बी योर मेटल, electrolyte will be your metal M का solution. That's it. खत्म. Now the major mistake you guys do कि आप metal M को नाम देने लगते हो. आप अपने हिसाब से इसको कॉपर लिखाओगे, जिंक लिखाओगे, कॉपर सल्फेट लिख देते हो, जिंक सल्फेट लिख देते हो, which is not required. जैसे पूछा वैसे बात करो, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी भाषा में उनको जवाब दो. मेटल एम के बारे में पूछ रहा है तो मेटल एम के रिस्पेक्ट में ही हम आंसर देंगे. अब अपने हिसाब से कोई भी मेटल का नाम वहां मेंशन नहीं करके आए. आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. Spatula क्या होता है? एकदम चम्मच जैसा, आप लोग ने देखा हो, थोड़ा फ्लैट सा होता है. तो सल्फर पाउडर लिया स्पैचुला पे और उसे हीट करा. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. ठीक है, तो स्पैचुला लिया, ठीक है, उस स्पैचुला के अंदर सल्फर पाउडर लिया और उसको हीट करा. इसके ऊपर लगा दिया इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब. तो अब यहाँ पे हीट करने पे जो भी गैस इवॉल्व होगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. फाइन. नाउ व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन? अब ये जो भी गैस इवॉल्व हुआ है, पहले तो बूझो तो जानो कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है. सल्फर जब बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या निकालेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. ऑन ड्राई लिटमस पेपर पे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या ऑब्जर्वेशन देखो. पहली चीज, वेदर इट्स एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. तो भाई और बहनों, लेट मी रिमाइंड यू ऑल, मेटल ऑक्साइड्स जो होते थे वो आपके मोस्टली ठीक है बेसिक नेचर रखते हैं. सम आर एम्फोटेरिक एंड योर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक बिहेवियर ही रखता है. अगर ये एसिडिक है तो ड्राई लिटमस पेपर पे तब भी ये कोई चेंज शो नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज ड्राई. ड्राई होने की वजह से देयर वुड बी नो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन, कोई रिएक्शन नहीं होगी आगे. सो देयर वुड बी नो ऑब्जर्वेशन शोन, देयर वुड बी नो चेंज observed in case 1.
नाउ मॉइस्ट लिटमस पेपर हुआ तो क्या? सो नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दे विल गिव यू सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और एसिड बनते ही क्या होगा भाई, ये फटाफट से आगे डिसोसिएट होगा क्योंकि पानी का प्रेजेंस है। पानी का प्रेजेंस होते ही यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन की वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। एसिडिक कैरेक्टर शो होते ही this moist litmus paper, blue litmus paper will turn simple, right? Blue litmus paper will turn red. Write the chemical equations, and these are your chemical equations. समझला? I hope everything is clear. तो सल्फर पाउडर को हमने बर्न करा. Always burning happens in presence of air. Air will oxygen, so that gives you sulfur dioxide. ठीक है, वन बाय वन. सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस पेपर. सेकेंड वाले के लिए लिखोगे मॉइस्ट के ऊपर दे विल कम इन कॉन्टैक्ट एंड दे विल फॉर्म सल्फ्यूरस ऑक्साइड, है ना, एंड ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड. अंडरलाइन करके आना, ठीक है, इट्स अ कीवर्ड. देन यू विल हैव टू शोकेस द रिएक्शंस. चलो, on that note, moving on to our next question, state 2 ways to prevent rusting of iron. बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको सिर्फ 2 बताने. अब आपकी मर्जी, आपको जो भी तरीका समझाना है, just take a pointer, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग हो, whether it's galvanization, whether it's alloying or whether it's tin chromium plating, it's your choice, right? So यहाँ पे I have taken painting, ठीक है. पेंट करने से क्या होगा, रस्ट प्रूफ पेंट करते ही यू विल क्रिएट अ कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल आयरन. आयरन के ऊपर जैसे ही कोटिंग लग गया, अभी उसके ऊपर डायरेक्टली मॉइस्चर और ऑक्सीजन का अटैक नहीं हो सकता. एज देयर वुड बी नो अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, दैट केस देयर वुड बी नो रस्टिंग. बट ये बहुत ही टेम्पररी प्रोसेस है. ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग भी टेम्पररी है, बट दे आर सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीके, राइट. नाउ ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग हम सिर्फ वहां करते हैं जहां पे हम पेंटिंग नहीं कर सकते. वेरी इंटीग्रेट प्लेसेस जैसे कि स्क्रूज हो गए, बोल्ट्स हो गए, बाइसाइकिल का चेन हो गया, सुइंग मशीन हो गई, तो हम लोग वहां पे ऑयलिंग करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट पेंट दोज प्लेसेस. वो इतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे कि पेंट विल नेवर गोइंग टू रेजिस्ट देयर. सो दैट्स द रीजन वी डू ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, फॉर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग. Next question. What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? Okay. Non-metal जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो कौन सा टाइप का ऑक्साइड बना? तो non-metal ऑक्साइड बोले तो they will be acidic in nature, but mostly there are neutral non-metallic oxides also. So let me tell you, non-metallic oxides दो नेचर शो करते हैं. मोस्टली इन मेनी केसेस और जनरली दे आर एसिडिक इन नेचर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करेक्ट. नाउ some of them will going to show neutral behavior. They will going to produce neutral gases, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड बोले तो laughing gas. Laughing gas हो गया. There would be carbon monoxide which is quite poisonous. So non-metallic oxide जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, they will either form acidic or either form neutral oxides. That's your answer. ठीक है, बिना एग्जाम्पल के अपना आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा. So you always have to end up your answer by giving example. चाहे एक एग्जाम्पल दो, लेकिन एग्जाम्पल देना मांगता है. Okay, next question. Give reasons. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. Why? काहे भाई? सिर्फ यही क्यों ज्वेलरी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ ब्रिलियंस, बहुत शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, या दैट्स द रीजन. सेकेंडली इनका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, सो दैट्स वाई वो लंबे समय तक चलते हैं. स्पेशली गोल्ड एंड प्लैटिनम तो ऑक्सीजन या किसी भी की तरफ रिएक्ट नहीं करते, चाहे पानी है और एनी अदर गैसेस. सिल्वर कर जाता है,
H2S गैस के साथ रिएक्ट, बट दैट कैन बी रिवर्स, हम उसको साफ कर सकते हैं. सो इट इज मेड फॉर ज्वेलरी पर्पज बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी. They are very less reactive towards air, water and other chemicals. As well as they are lustrous. That's the major property. एकदम चमकता हुआ गोल्ड चाहिए, चमकती हुई चीज चाहिए, which is more attractive. तो lustrous है, malleable है, ductile है. कानों में आप लोग क्या पहनते हो? गोल्ड का कुछ पहनते हो, वायर लाइक थिंगी. जो जिसने नया नया कान पियर्स कराया है वो अच्छे से जानते हैं, या तो सिल्वर का वायर पहनते हैं या फिर गोल्ड का. Yeah, so they are ductile also. It can be used in various types, as well as they have high corrosive resistance. बहुत ज़्यादा corrosive resistance. Next part. Next question. Sodium and potassium are stored in kerosene oil. ये बहुत important question है for exam point of view. सोडियम और पोटेशियम क्योंकि ऑक्सीजन एयर की तरफ एकदम खतरनाक रिएक्शन शो करते हैं. जैसे ही तुम उसको हवा में छोड़ दोगे थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा अरे आग लग गई है. सो व्हाई दे कैचेस फायर? जस्ट बिकॉज दे रिएक्ट सो विग्रसली टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड दैट्स द रीजन वी हैव टू स्टोर देम अंडर कैरोसिन ऑयल. आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. देखते हैं यू आंसर इट और नॉट. लिथियम के बारे में आप मुझे बताओ, क्या हम लिथियम को ऑयल में स्टोर कर सकते हैं? इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, देन आप मुझे उसका रीजन दोगे और साथ में आप मुझे ये भी बताओगे कि आप लिथियम को किस में स्टोर कर सकते. अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन. यू विल टेल मी इन चैट बॉक्स कि आप लिथियम को कैसे स्टोर कर सकते हो. अगर कैरोसिन ऑयल में स्टोर कर रहे हो तो व्हाई, और अगर नहीं स्टोर कर पा रहे हो तो किस में स्टोर करोगे एंड व्हाई. आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर. So this is very very interesting. ढूंढ के देखो, सोच के देखो. You will be amazed to know about it. तो यहाँ पे तो हम हमेशा सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ते. लिथियम का क्या, वो कहाँ जाएगा? Think about it. तो सोडियम एंड पोटेशियम विग्रस होते हैं, रिएक्ट टुवर्ड्स वाटर एंड दे प्रोड्यूसेस लॉट अमाउंट ऑफ हीट. इतना जबरदस्त हीट प्रोड्यूस, रिएक्शन इज सो हाईली एक्सोथर्मिक कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है उस दौरान दैट विल गोइंग टू कैचेस फायर. एंड लेट मी टेल यू फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब सोडियम बर्न करता है, जब सोडियम को हम लोग देखते हैं बर्न होते हुए, दैट प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो फ्लेम. वो गोल्डन येलो फ्लेम में बर्न होता है. जबकि पोटेशियम के केस में दे प्रोड्यूस लाइलैक कलर का फ्लेम. लाइलैक बोले तो लैवेंडर पर्पलिश कलर विच इज वेरी ब्यूटीफुल. तो उसके कलर देके, फ्लेम के कलर देके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये पोटेशियम है, ये सोडियम है. दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी. ओके, now next question, next part is aluminum is highly reactive metal, yet it is used for making or baking utensils for cooking. लोग ने ये एक डायलॉग सुना है, आत्मनिर्भर जनता, सुना ही होगा. तो एल्यूमिनियम वो एक ऐसा आत्मनिर्भर मेटल है जो अपनी रक्षा खुद स्वयं ही करता है, खुद ही करता है. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जब भी अपने ऊपर ऑक्सीजन का अटैक देखता है, सो दैट क्रिएट्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी तरफ कोरोजन जब होगा तो उनके लिए वो एडवांटेज होगा. So aluminum and zinc are two आत्मनिर्भर metals which protect themselves on their own. वो अपनी रक्षा खुद करते हैं by creating a layer of oxide, चाहे वो जिंक ऑक्साइड हो या एल्यूमिनियम. खैर हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं. So why it is used for making? जबकि वो खुद ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि अपने ऊपर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है and it protects the surface of aluminum further. आप घरों में भी एल्यूमिनियम के बर्तन उठा के देखो, आपको एक भी बर्तन ऐसा चमकता हुआ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं. हमेशा डल होते हैं क्योंकि टाइम के साथ साथ वो लेयर बना लेंगे अपने ऊपर एंड दैट गिव देम डलनेस, वो कभी शाइन नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ.
अब होता क्या है, मेटल कार्बोनेट की बात करें जैसे कि जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन हो गया, मेटल सल्फाइड और की बात करें जैसे कि जिंक सल्फाइड विच इज कॉल्ड एज जिंक ब्लेंड। अब इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना अटूट है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसको तोड़ना इज नॉट पॉसिबल बाय जस्ट एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बस इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो और तुम्हें मेटल मिल गया, नहीं, नहीं हो पाएगा। तो देखा क्या गया कि इनको तोड़ने के लिए पहले प्रोसेस करना पड़ेगा एंड दैट इज रोस्टिंग। कार्बोनेट के केस में हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन बोले तो हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, और रोस्टिंग करेंगे हम लोग सल्फाइड के केस, जिसमें हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डालते हैं एज वेल एज वी स्ट्रांगली हीट देम, तब जाके ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं एंड वंस दे कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म, यहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर, बस इन ऑक्साइड्स में रिड्यूसिंग एजेंट का तड़का डालो एंड यू विल गेट मेटल एक्सट्रैक्टेड। जैसे कि जिंक ऑक्साइड में कार्बन का तड़का डाल दो विच इज योर रिड्यूसिंग, so you will get carbon monoxide and ta-da! Zinc will be out. Metal is extracted. Right? So reducing metal oxides into free metal is easy. Metal oxide से free metal निकालना बहुत आसान है, लेकिन वही चीज कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स में से करना उतना ही डिफिकल्ट। तो वही है ना, घुमा के आना पड़ेगा। सो कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, सल्फाइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, जैसे ही ऑक्साइड बना मेटल। Next question. You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning. एकदम सीधी सी बात है भाई, आप लोगों के पास अगर कॉपर का बॉटल है या कॉपर का कोई भी सामान है, या एनी वन ऑफ यू इज वेयरिंग कॉपर का बैंगल या रिंग, तो आप देखते हैं कि उनका स्किन ग्रीन पड़ गया, या वो यूटेंसिल या वो ऑब्जेक्ट हैज टर्न ग्रीन इन कलर। तो वो जो ग्रीन कोटिंग बनता है ना, दैट्स एक्चुअली अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। होगा क्या, कॉपर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब जब ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, तो नाम में ही बेसिक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका कलर क्या है, ग्रीन, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई एसिडिक सब्सटेंस चाहिए होगा। मतलब इस ग्रीन कोटिंग को रिमूव करने के लिए वी नीड सम सावर सब्सटेंस, सावर खट्टा सब्सटेंस चाहिए। अब चाहे तुम लेमन से करो, कई लोग केचप यूज करते हैं, कई लोग विनेगर यूज करते हैं, सम पीपल यूज टैमरिंड जूस, इमली का जूस, या सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एसिडिक। पीताम्बरी पाउडर आता है, कई लोग पीताम्बरी पाउडर यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो एसिडिक। So let me give you one little piece of advice here कि अगर आपके घर में कोई पीताम्बरी पाउडर यूज करता है and you use it on a daily basis, तो कृपया करके ग्लव्स पहन लिया करो, because it's acidic and it will harm your skin. So your loved ones or you do this process, तो कृपया अपना okay. Moving on to the next question, differentiate between metals and non-metals on the basis of chemical property. तो भाई chemical लोचा, अभी chemical properties बोले तो chemical reactions, chemical reactivity या chemical reactions के basis पे आप metals और non-metals को कैसे divide करेंगे या कैसे differentiate. Let's take a look. Metals पानी के साथ react करके metal oxide बनाएगा, which is a basic oxide. On the other hand, अगर हम कार्बन या किसी और नॉन मेटल की बात करें, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या तो न्यूट्रल या एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। इन दिस केस इट्स एसिडिक। मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, या फिर दे ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड। दोनों ही केस हो सकते हैं, या तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। बट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, सारे नॉन ही रह जाएंगे, उनके they lack everything. So non-metals do not react with water. Metals react with dilute acid और hydrogen और salt मिलेगा, जैसे कि zinc reacts with HCl. In return that gives you zinc chloride, salt दिया, respective hydrogen gas बाहर.
इस केस में देयर वुड बी नो रिएक्शन, क्योंकि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को स्पेस ना ही कर सकते. सो यू कैन गिव दीज केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उसके साथ साथ रिएक्शंस देना मत भूलना. रिएक्शंस दोगे तो आपका लिखा हुआ आंसर वैलिडेट होता है. Why? Because you are giving answers for a practical subject. Practical subjects में examples matters a lot. Okay, on that positive note, our next question. Question number 14. A man went door to door posing a goldsmith. हाई स्कैम है, सॉलिड स्कैम है ये. डोर टू डोर गोल्डस्मिथ जाता है एंड प्रॉमिस करता है कि भाई आपका हम गोल्ड एकदम नया जैसा कर देंगे, डल ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स को एकदम चमका देंगे मैडम. ओके. एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम व्हिच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. समझ रहे हो ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, राइट? The bangles sparkle like new, but their weight got reduced drastically. That's a scam. अब कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है. उनको लगता है अरे वाह यार ये तो चमक गया भैया, आपने तो बड़ा गजब का काम कर दिया है ना, और वो खुश होकर निकल जाते हैं. बाद में पता चलता है कि मैडम आपके पूरे ऊपर का लेयर गोल्ड का जा चुका है. It's gone. अभी वो नहीं मिलेगा. वो किसके पास है? गोल्डस्मिथ के पास है, जो कि आगे एक्सट्रैक्ट करके उसको बेचेगा. तो उसने तो अपना डबल अर्निंग कर लिया, तुम्हारा ये गोल्ड साफ करके भी और साथ में उसको बेच के भी. तो भाई उसने तो एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर लिया है. So lady was upset, but after futile argument with a man, beat a hasty retreat. Can you play the detective and find out the nature of? मुझे तो जाने. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कौन सा सोल्यूशन यूज करा था गोल्डस्मिथ ने. चूना लगा के गए हैं, एंड दैट्स नन अदर देन रॉयल वाटर. रॉयल वाटर बोले तो एक्वा रेजिया. एक्वा रेजिया क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 in a ratio of 3:1 respective. So concentrated HCl is to concentrated. 3 टेस्ट ट्यूब अगर HCl की concentrated, 1 टेस्ट ट्यूब concentrated HNO3 की होगी, that has the power to dissolve noble metal. Aqua regia noble metal को dissolve करने की शक्ति रखता है, power रखता है. So like platinum हो गया, silver हो गया, gold हो गया, they can easily get dissolved in aqua regia. Moreover, gold and platinum. Next, give reason why copper is used to make hot water tanks and not iron. क्या बोलती पब्लिक? आयरन को पानी के साथ छोड़ दोगे तुम काफी टाइम तक? छोड़ सकते हो भाई, रस्ट हो जाएगा. टैंक ही थोड़े टाइम में शेड ऑफ होने लगेगा, छेद हो जाएंगे भी, टूटने लगेगा. सो व्हाई? बिकॉज आयरन पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ अच्छा काम नहीं करता. दे आर नॉट फ्रेंडली विद ईच अदर, दे विल टर्न इनटू रस्ट. जबकि कॉपर के साथ ऐसा केस नहीं है. कॉपर ना ही स्टीम, ना ही कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर, किसी के साथ किसी को भाव नहीं देगा, एंड देयर वुड बी नो रिएक्शन एट ऑल. इसीलिए हम लोग वाटर टैंक्स कॉपर के बना सकते हैं, बट नॉट विद आयरन. क्यों बॉस? ताकते फट्टे. लेट्स मूव ऑन. So here is your question. बैलेंसिंग करना मांगता है Mg plus HNO3. ये भी एक रिएक्शन है which you remember कि HNO3 सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है. सबके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, एक्ट कर लेगा बट हाइड्रोजन गैस नहीं देता. लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे एक्सेप्शनल मेटल्स हैं जिनके साथ HNO3 रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा. तो अभी प्रोडक्ट सही लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट गड़बड़ कर दिए तो बैलेंसिंग अपने आप गलत. So do let me know your answers in the chat box. I'll definitely come out and check out there. So do follow me on my Insta channel as well as join Telegram channel as all for more information. Do not forget to hit the like button, subscribe and comment. So thank you so much guys. This is me Rachita Sachdeva signing off. Thank you. Happy always and next session. Bye.